సో మీరు కూడా ఆ దండుపాలెం బ్యాచ్ గురించి ఏమన్నా తెలుసుకోవటం, ఎక్కువగా బ్యాక్ వర్క్ చేయటం, డబ్బింగ్ ఎప్పుడైనా చెప్పారా సార్? ఒక్కడిని కొట్టడానికి ఇంతమందిని పంపాడేమి సత్య, లేద్దాముంటే వాడిని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్తా. నా పేరు సూర్య, నా ఇల్లు ఇండియా. స్టార్టింగ్ ఫైట్ विथ अल्लू अर्जुन सर. तेलुगु इंडस्ट्री मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे इंडस्ट्री है आज की तारीख में. సనాతన ధర్మం గురించి కానీ అక్కడ తమిళనాడులో ఉన్న కొంతమందికి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి లేదా వాట్ ఎవర్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఇలా ఇష్యూ అవుతుంది. पूरा धरती पर साष्टांग नमस्कार किया अपने बड़े भैया को. यह है सनातन धर्म, यह है सनातन धर्म की शिक्षा, यह है सनातन धर्म की दीक्षा. आप अपनों के लिए पवन है, दुश्मनों के लिए आंधी है. కోట గారు ఏమంటారంటే ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు వాళ్ళు కాకుండా వేరే వేరే లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు వస్తున్నారు, హిందీ వాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలుగు భాష అర్థం కాదు. सर मैं पहले तो कोटा श्रीनिवास गारू को सलाम करता हूँ. హే హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ లుక్స్. నేను మీ చందు. సో ఈ రోజు మీ ముందుకి ఒక భయంకరమైన నటుని తీసుకొచ్చేసాను అనమాట. సో బేసిక్గా ఆయన తెలుగులోనే కాదు, కన్నడ అండ్ మరాఠీ, తమిళ్, హిందీ ఇలా అన్ని లాంగ్వేజ్లో సినిమాలు చేస్తూ తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అండ్ తెలుగులో కూడా ఆయన చాలా సినిమాలు చేశారు. బట్ దండుపాలెం అనగానే ఆయన యాక్టింగ్ లెవెల్స్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతాయి. అండ్ నాకు తెలిసి అండ్ యూట్యూబ్ ఇండస్ట్రీలోనే, యూట్యూబ్ హిస్టరీలోనే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఆయనే రవి కాలే గారు. అండ్ ఆయనతో మాట్లాడదాం చాలా విషయాలు. బట్ ఇక్కడ చిన్నది ఏంటంటే ఆయనకు తెలుగు అర్థమవుతుంది, బట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని హిందీలోనే మాట్లాడతారు. బట్ మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను ఆ తర్వాత దాన్ని తెలుగులో అర్థమయ్యేలా కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే నేను చేస్తాను. ఇక ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దామా? రవి గారు నమస్తే. అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు. అబ్బా చాలు సార్, ఈ 2 చాలు సార్ మాకు. కొంచెం మాట్లాడతారు, కొంచెం సార్, కొంచెం మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి సార్ మా తెలుగు ప్రేక్షకులు. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ, ఇట్స్ ఎ గాడ్ గిఫ్ట్. యా, అంటే కొంచెం వినంగానే ఎక్కడో చిన్న భయం, शिवरिंग पर वॉइस ऐसा है, फिल्मों में काम जो किया है बहुत नेगेटिव कैरेक्टर किए है, पर इंसान बहुत प्यारा है. ఓ సరే, డబ్బింగ్ ఎప్పుడైనా చెప్పారా సార్? From the first film I started dubbing. Okay. I did my first film in Telugu, Mass with Nagarjuna sir. Raghavendra Lawrence was a director. Yeah. So I started from the first film only. Today also I remember those dialogue in Mass, what I said. ఒక్కడిని కొట్టడానికి ఇంతమందిని పంపాడేమి సత్య, లేద్దాముంటే వాడిని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పరా. పొలిటీషియన్లు దీంట్లో ఎంటర్ అవ్వద్దు సార్. సత్య మనుషులతో వదిలేయాలా, మీ డ్యూటీ మీరు చూసుకుంటే నా డ్యూటీ నన్ను చూసుకునేవాడి. तो डायलॉग बोलना एक अलग चीज होती है और नॉर्मल लाइफ में बात करना, क्योंकि सब मिक्स हो रहा है. मतलब अभी 8 दिन मैं आंध्रा में काम कर रहा हूँ, 8 दिन मैं कन्नड़ में जा रहा हूँ, वहां पे काम कर रहा हूँ, फिर तमिल, फिर मराठी, फिर हिंदी, फिर गुजराती. तो पूरा मिक्सचर लैंग्वेज का मिक्सचर है. तो समझ में नहीं आ रहा है अभी कुचुंडी बोलना है, उपरंगा बोलना है, कुतकुड़ी बोलना है या बैठो बोलना है. तो कंफ्यूजन का मतलब मीनिंग तो मालूम है. जितना भी आज तक काम किया तो समझ के करते हैं, पूरा सोच, पूरा लर्न करते हैं और फिर लाइन बोलते हैं. और डबिंग तो ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు యాక్ట్ చేసిన తెలుగు సినిమాలన్నిటికీ మీ ఓన్ వాయిస్ మీరే ఆల్వేస్ 99%. అంటే మీ సినిమాలకి మీరు చేసిన దానికి కాకుండా ఎవరైనా యాక్టర్స్ కి మీరు డబ్బింగ్ చెప్పారా సార్? तो वो भी होता है कभी कभी. समझो बहुत ही कमर्शियल है, छोटा सा कैरेक्टर है, तो फिर इतना, पर बहुत अच्छा कैरेक्टर है तो मैं डायरेक्टर को बोल देता हूँ कि सर आई विल डब. दैट्स बिकॉज अदरवाइज वो कैरेक्टर मिस हो जाता है. वॉइस क्योंकि सिर्फ बेस्ट वॉइस नहीं होता है. डबिंग आर्टिस्ट नॉर्मली, सॉरी मैं किसी को ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, पर वो वॉइस देना चाहते हैं, वो वहाँ वॉइस नहीं होता है. कभी कभी इमोशंस भी होते हैं, तो वो आर्टिस्ट को पता होता है कि ये सीन में मैंने क्या किया था. तो इसलिए मैं आई प्रीफर, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है तो 100% आई वांट टू डब. दैट्स ఓకే, డన్. సార్ టోటల్ గా ఎన్ని మూవీస్ చేశారు సార్?
ఓన్లీ తెలుగు ओनली Oh. तेलुगु आई थिंक 45 to 50 45 हाँ, 45 from to the 50 mass. మాస్. देन शॉक आसाद दिडू నా और పేరు ना సూర్య पेर నా सूर्या ఇల్లు. ना हाँ वो दैट आल्सो సార్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిం దృశ్యం, दुष्यम సో చాలా అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది, సో ఇరిటేటింగ్ గా. वो एक्चुअली द दृश्यम का जो वीरभद्रा है, వీరభద్ర हाँ वीरभद्रा, उसका नाम था वीरभद्रा, कांस्टेबल है वो। एक्चुअली अपना ड्यूटी कर रहा है, बहुत लॉयल ड्यूटी कर रहा है। हाँ छोटी मोटी चीरी मिरी खा रहा है बेचारा, चाय पी रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, पर ड्यूटी लॉयल लॉयल कर रहा है। पर वो एक ऑडियंस हीरो के इमोशन के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, तो वीरभद्रा को विलन समझ విలన్ విలన్ एक्चुअली वो तो सच बोल रहा था ना, मतलब अभी सबने फिल्म देखी है तो वीरभद्रा सच बोल रहा था पूरी फिल्म में, बाकी सब झूठ बोल रहे थे पर वो विलन है। సో మొత్తం మీద సార్ ఒకవేళ తెలుగులో 42-50 చేశారు 50 అండ్ కన్నడ कन्नड़ा मोर देन 100, టోటల్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ కలుపుకొని total 300 films till 300 today. films? Last 20 years ఓకే. 300 films. ఈ 300 ఫిలిమ్స్ లో Hmm. సో బెస్ట్ టాప్ 5 ఫిలిమ్స్ అంటే ఏ నేమ్స్ ఏం చెప్తారు? टॉप 5 फिल्म में एक तो फर्स्ट आएगा सरकार, जो हिंदी में किया था, Okay. राम गोपाल वर्मा मेरे गॉडफादर उनके साथ। हाँ. और फिर सरकार हो गई, फिर कन्नड़ में साइनाइड करके एक फिल्म किया था, वो तमिल में भी रिलीज हुआ था। इट्स अबाउट राजीव गांधी असैसिनेशन। आई डिड दैट इन दैट फिल्म शिवरासन हु किल्ड राजीव गांधी। इट्स अ लीड रोल, नेगेटिव कैरेक्टर। देन दृश्यम, దృశ్యం, इवन शॉक का भी जो पुलिस ऑफिसर है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। दंडोपाल्या के पूरे 1 2 3 4, 1 2 3 तो एटलीस्ट 20-25 फिल्म मुझे लगता है कि जो मुझे पसंद आया। मुझे पसंद आया. बाकी तो कमर्शियल स्टफ होता है, आपको करना पड़ता है कई बार आपके पास चॉइस नहीं होता है। ఓకే సార్, ఎంటైర్ సినీ కెరీర్ మీ కెరీర్ లో దండుపాళ్యం సిరీస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అవైటెడ్ అండ్ డేంజరస్. సో మీ క్యారెక్టర్ గురించి అండ్ ఆ సినిమా గురించి అండ్ అంటే చాలా వరకు బయట జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకునే, ట్రూ ఈవెంట్స్ ని బేస్ చేసుకునే దండుపాళ్యం అనేది ఉంటుంది కదా. సో మీరు కూడా ఆ దండుపాళ్యం బ్యాచ్ గురించి ఏమన్నా తెలుసుకోవటం, ఎక్కువగా బ్యాక్ వర్క్ చేయటం ఇలాంటివి చేశారా? ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి రియల్ स्टोरीज वो हाँ रियल स्टोरी था। और उसके डायरेक्टर जो है श्रीनिवास, वो भी आंध्रा से ही है। वो पहले हम लोग कन्नड़ में किया था पार्ट 1, तो उन्होंने हम लोग को मिलवाया भी था। वो रियल जो कैरेक्टर है, वो रियल पर्सन्स है, दे आर इन द मैसूर जेल नाउ। मतलब व्हेन वी शॉट दैट फिल्म, सो फर्स्ट टाइम वी मेट देम एंड वी सॉ दे आर वेरी नॉर्मल पीपल। नॉर्मली क्या होता है ना, हमेशा आप और मैं, मेरे अंदर भी एक रावण बैठा है, मेरे अंदर, आपके अंदर भी एक एनिमल बैठा है, बराबर, मेरे अंदर भी एक एनिमल है। पर वो एनिमल कब बाहर निकलेगा मालूम नहीं है किसी को। हम बहुत सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत, हम मतलब एटिकेट्स ये वो पालते हैं, और फिर समाज के प्रेशर के कारण, अपने फैमिली के प्रेशर के कारण, या जहां पे हैं वहां के जो लोग हैं उनके प्रेशर के कारण हम बहुत पोलाइट बिहेव करते हैं। मतलब इट्स, मुझे लगता है, पर वो रियल में एक एनिमल, हर इंसान के अंदर एक भगवान भी है और एक एनिमल भी है। मतलब राम भी है, रावण भी है। तो वो कौन सा कब बाहर निकलेगा, और क्या वो उसको कब मौका मिलेगा बाहर निकलने के लिए। तो और वो ऐसे घृणास्पद कृत्य जो है, बुरी चीजें कर देता है। तो मुझे लगता है वो अपने आप को संभालना चाहिए हमेशा। बुरा ख्याल आया तो थोड़ा सा शांत बैठो, ओम का उच्चारण करो या भगवान का नाम ले लो, और उस बुरे ख्यालों को दूर भगाओ। डन सर, बैक टू योर चाइल्डहुड, योर फैमिली. सो रवे काले सर, फैमिली बैकग्राउंड. मैं एक्चुअली बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ। ऊना से एक 70-80 किलोमीटर पे एक 100 हाउसेस है, सिर्फ अभी भी 100 हाउसेस ही है। छोटा सा एक पहाड़ के पत्थर के ऊपर, पहाड़ के बाजू में जो पत्थर होता है, वहां पे एक छोटा सा गांव है, 100 हाउसेस है वहां पे, सिर्फ आज भी 100 ही है। और
बहुत ही मतलब एक किसान, नॉर्मल किसान जो होता है, आम किसान जो होता है, एक रैतालू फार्मर। फार्मर, तो उसके घर में पैदा हुआ। ग्रेजुएशन तक वहीं था। 1 किलोमीटर पे 12 तक स्कूल था। एक फिफ्थ मतलब मेरे उस ये गांव में 4th स्टैंडर्ड तक स्कूल था। फिर और 1 किलोमीटर पे 5th स्टैंडर्ड से 12th तक, फिर और 13 किलोमीटर पे ग्रेजुएशन के लिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज था। तो बहुत सिंपल सी जिंदगी थी। खेत खलियान में जाना, खेतों में काम करना, गायें भैंसे थी। उनको अगर स्टडी करना है तो घर वाले बोलते थे कि अच्छा चलो स्टडी करना है तो ये किताबें उठा लो और गाय भैंसों को 10-12 गाय भैंसे, उनके बच्चे, वो सब लेके जंगल में जाओ और उनको जंगल में चरने के लिए, घास खाने के लिए छोड़ दो और वहां पढ़ाई करो पेड़ के नीचे। तो ऐसी जिंदगी थी। पर बनना था एक्चुअली पुलिस ऑफिसर। यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहा था मैं। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं बीकॉम किया हूँ और फिर लॉ के लिए मुंबई में एडमिशन लिया था। और एक सर्टन डे आ गया और मैं, मेरे जो गुरुजी है पंडित सत्यदेव दुबे, उनका मेरे ही कॉलेज में जहां मैं लॉ कर रहा था, उसी कॉलेज में एक्टिंग का वर्कशॉप था। ये बात है 1990s की। तो मैं एक दोस्त को मिलने गया था। मैं, वो मेरे साथ 10th तक था, फिर वो मुंबई आके पढ़ाई की उसने, और उसको मिलने गया था। तो मैंने देखा ये, मुझे मालूम नहीं ये क्या है। तो 60-70 लड़के लड़कियां, दे आर डूइंग सम माइमिंग एक्सरसाइज, और इट वाज लुक लाइक पागल खाना जैसे बोलते हैं ना, मैड हॉस्पिटल, ऐसा। वो एक मैड लोगों का वार्ड है ऐसा कुछ, और बड़ा सा हॉल, और दे आर डूइंग कार वॉशिंग एक्सरसाइज, बट देयर इज नो कार, एंड दे आर, वो somebody is शाउटिंग, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई अलग अलग इमोशंस में 60-70 लड़के लड़कियां। और मैं देख के हैरान हो गया। मैं बोला ये क्या है। तो कुछ हो गया, पर 15 मिनट्स आई वाज वाचिंग देम। तो जब वो दोस्त, फिर टी ब्रेक था 11:30 को, मैं 11:15 को वहां पहुंचा, तो 11:30 को टी ब्रेक हो गया। तो मैं उसको सवाल पूछ रहा था कि ये क्या है। तो बोला एक्टिंग क्लास है। तो मैं बोला यार मुझे करना ही है। मैंने लॉ छोड़ दिया, एक्टर बनने का डिसाइड कर लिया। पर उसके बाद 12 साल थिएटर, और नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद विद इन 1 or 2 years ऑल पीपल दे सेटल इन देयर लाइफ। जो मतलब जो बनना है बन जाता है 2-3 साल में। पर उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन, और लॉ कर रहा था, वो एक लॉ का 1 साल हो गया था, सेकंड ईयर में था, और लॉ छोड़ दिया मैंने। ऑलवेज मैं मतलब कॉलेज, संडे को कॉलेज जाता था खाली, क्योंकि संडे को वर्कशॉप हुआ करता था, वो एक्टिंग सिर्फ संडे, और मंडे टू सैटरडे मैं कॉलेज जाना बंद कर दिया। और बस वो गुरु मिल गए, थैंक यू दुबे जी। और गुरु मिल गए, जो गुरु ऑफ अमरीश पुरी, नाना पाटेकर, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह। पर मुझे मालूम नहीं था ये इतने बड़े हैं। तो मैं तो ऐसे ही एक्सीडेंटली पहुंच गया था। और एक 2-3 महीने के बाद मुझे पता चला कि ये गुरु नाना पाटेकर के गुरु है, अमरीश पुरी के गुरु है, ओमपुरी साहब के गुरु है। तो मैं डरना शुरू हो गया। मुझे वो उनसे डर लगने लगा कि यार बहुत बड़े लोग हैं ये। मैं गांव से आया हुआ लड़का था ना एक, और मुंबई शहर में, एक तो ऐसे भी आप जब गांव से आते हैं किसी, तो शहर में जब आते हैं तो हम थोड़े से डरे डरे से रहते हैं, एक फियर रहता है हमेशा। तो फिर मैं अपने आप को समझा दिया। मैं बोला कि ना, मैं सही जगह पे पहुंच गया हूं। तो अगर बड़ा है तो बड़ा बड़ा सोचते हैं ना। तो बस, और शुरू हो गया। फिर विजय मेहता सेकंड गुरु मेरी, मतलब जो पंडित सत्यदेव दुबे इज लाइक एक्टिंग का ग्रेजुएशन, और विजय मेहता अगेन गुरु ऑफ नाना पाटेकर, ओमपुरी, अमरीश पुरी, वो सब, नसरुद्दीन शाह, वो पूरा ऐसा स्कूल है। मतलब एक इनके पास, फिर अगर प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो विजय मेहता, और वो लकीली मैं दोनों के पास पहुंच गया, और आज यहाँ तक हूँ। సార్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మొత్తం మీ గురువు అంటే యాక్టింగ్ పరంగా, సో లైఫ్ పరంగా మీ గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరి పేర్లు చెప్పారు, అమరీష్ పూరి అది. బట్ మీకు తెలుగులో ఎవరు అలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించలేరు? మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన యాక్టర్స్ ఎవరు లేరా तेलुगु में? मैं बहुत सारे जितने भी एक्टर्स है ना, चिरंजीवी सर है, या जिनके साथ मैंने काम किया, चिरंजीवी सर के साथ भी मैंने काम किया था, आचार्य। हालांकि उसमें कैरेक्टर रहा नहीं, वो 23 डेज शूट किया था मैंने, पर वो कैरेक्टर बचा नहीं, पता नहीं क्या आगे स्टोरी चेंज हो गया, वो क्या हो गया, एडिटिंग, हाँ एडिटिंग में चला गया पूरा कैरेक्टर। और चिरंजीवी सर भी बहुत तारीफ करते थे।
कोटालू शिवा सर थे डायरेक्टर, वो भी बहुत तारीफ करते थे जब जब सीन वो शूट हुआ करता था, और उसमें मैंने बहुत इमोशनल और कॉमेडी किया, कैरेक्टर किया था, ओह तो वो बोले उनको बहुत पसंद आया था। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया ना, और स्पेशली मैं सिर्फ तेलुगु की बात नहीं करूंगा, आज तक मुझे मेरे तकदीर में जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, जितने भी एक्टर्स के साथ, बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया, सबके साथ बहुत रिस्पेक्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, पर जितने भी लोगों के साथ काम किया ना, और स्पेशली साउथ में, ये 100%, क्योंकि हिंदी इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री है और वहां पे बहुत स्टारडम वगैरह चलता है, पर मुझे साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा से मतलब रजनी सर के साथ भी काला में काम किया, या काला, कहा कन्नड़ में तो ऑलमोस्ट सबके साथ, शिवान्ना से लेके पुनीत अन्ना, सबके साथ काम किया, पर सब इतने डाउन टू अर्थ लोग, इतने डाउन टू अर्थ कि मतलब मैं किस्सा बोलना चाहता हूँ। चिरंजीवी सर के साथ हुआ है मेरा, मैं पहली फिल्म कर रहा था या दूसरी फिल्म, आसाद्युडिया शौक का शूटिंग था, और बाजू के बंगलों में चिरंजीवी सर का एक डांस करने वाले थे, डांस का शूटिंग होने वाला था, अंदरवाडू, हाँ हाँ कुछ तो, और मुझे सुबह बता दिया कि बाजू में चिरंजीवी सर है, और वो उस वक्त बहुत पीक पे थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 या 6 की, हाँ, चिरंजीवी सर वॉज टॉप। तो मैं बोला यार इतना बड़े एक्टर को एक डर रहता है ना, ये एक तो मैं नया हूँ, एक फिल्म हो गई है, दूसरी कर रहा हूँ, और मैं उनको जाके मैं क्या बताऊंगा, तो मिलूं या नहीं मिलूं। बाद में मुझे बताया कि राघवेंद्र लॉरेंस है, वो डांस कोरियोग्राफ कर रहे हैं, उनके साथ मास किया था मैं, हाँ। ये आपके सरकार की बात है। तो मैं गया, फिर मैं बोला लॉरेंस मास्टर तो मैं जाऊंगा अब, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है। तो गया तो मेरे ऐसे सामने बहुत सारे डांसर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, और ऐसे बैठे थे, सामने मॉनिटर था, और मैं पीछे से गया और लॉरेंस सर को ऐसे मैंने पीछे से पकड़ा, तो उन्होंने ऐसे देखा और बोले हाँ, नहीं ये लॉरेंस मास्टर। तो मुझे देखा, अरे हिंदी एक्टर रवि, मैं बोला हाँ सर, मैं बाजू में शूट कर रहा हूँ। तो चिरंजीवी सर थे वहां पे, और मैं इंट्रोडक्शन हो गया। तो चिरंजीवी सर, मैं जब तक वहां था वो ऐसे खड़े थे, मतलब मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता हूँ, कैमरा फ्रेम है अपना, वो ऐसे खड़े थे और मेरे साथ वेलकम रवि इन हैदराबाद तेलुगु इंडस्ट्री। और तो मैं बोला थैंक यू सर, और मैं उनको हैव अ सीट सर, नो इट्स ओके। तो ये जब तक मैं वहां खड़ा था मुझे एम्बेरसिंग फील होना शुरू हो गया, तो मैं जल्दी भाग गया वहां से, वो बैठ नहीं रहे। और तो फिर ये आचार्य जब किया ना, मैंने चिरंजीवी सर को मैंने इंसिडेंस बताया कि सर उस दिन से मेरे आप यहाँ पे हैं, कि इतना एक नए एक्टर को आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि मैं तो नया था, बच्चा था, एक दूसरी फिल्म तीसरी फिल्म कर रहा था, तो उसको भी इतना आप रिस्पेक्ट करना, मतलब हैट्स ऑफ सर। तो ये कल्चर जो है ना साउथ में, बहुत इंडियन कल्चर है हमारा, सनातनी कल्चर है हमारा, कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे को पुश करो, आगे पुश करो। तो ये इंसिडेंस है। और रही बात आपके सवाल की, तो सब लोग, मैं मतलब ऐसे एक का नाम नहीं, पर जहां मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं चोरी कर लेता हूँ, अपने बैग में रखता हूँ, और जहां यूज कर सकता हूँ वहां यूज करता हूँ। ఓకే డన్ సార్, వన్ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది తెలుగు యాక్టర్స్, సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు. యునో కోట శ్రీనివాసరావు बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, మీరు వర్క్ చేశారా ఆయనతో? వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా సార్? సో బేసిక్ గా అప్పుడప్పుడు కోట శ్రీనివాసరావు గారు, కోట గారు ఏమంటారంటే, అండ్ ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు వాళ్ళు కాకుండా వేరే వేరే లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు వస్తున్నారు, హిందీ వాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలుగు భాష అర్థం కాదు, తెలుగు డైలాగులు సరిగ్గా రావు అని చెప్పి ఆయన కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకనొక టైంలో ఆయన షయాజీ షిండే గారు వాళ్ళ మీద ఓపెన్ స్టేట్మెంట్స్, కామెంట్స్ చేశారు. సో మీరు ఏం చెప్తారు సార్? అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వేరే లాంగ్వేజ్ లో యాక్టర్స్ ఎక్కువైపోతున్నారు, తెలుగు వాళ్ళకు ఛాన్సులు తగ్గుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు. సో దానికి మీరేమంటారు? విన్నారా మీరు? ఆ కామెంట్స్ విన్నారా? हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग की लैंग्वेज अलग होती है। मतलब ये दुनिया में कहीं भी अगर मुझे ऐसे किसी ने किया तो दुनिया का जितने भी लोग हैं ना सेम रिएक्ट करेंगे। ऐसे अगर पिंच निकाला तो सेम रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है एक्टिंग का लैंग्वेज ही अलग है। तो मुझे भी पहली फिल्म जब मैंने की थी मास, तो मैं डर रहा था, तो लोगों ने, डायरेक्टर सर बोले नॉट वरी टू अबाउट लैंग्वेज,
इट विल हैपन, नो मतलब विल मैनेज लाइक दैट। पर मैं बोला मैनेज नहीं, आई लर्न द डायलॉग्स एंड आई से द डायलॉग, आई वांट टू डब आल्सो, बिकॉज क्या होता है वो इमोशंस जो है ना एक एक, मतलब जैसे एक फिल्म में लाइन थी, तेलुगु फिल्म का ही है, तो वो हॉर्स पे था पूरा, और डायलॉग बाय हार्ट करना ही जरूरी था, तो मैंने किया था। राजन नाम है शायद, हाँ, राजन। विजेंद्र प्रसाद डायरेक्टर थे, और राजमौली सर एक्शन पार्ट शूट करे थे, बहुत घोड़े बड़े, बहुत साउंड ये था। రాజన్న మూవీకి యాక్షన్ एक्शन पार्ट రాజమౌళి సార్ राजमौली డైరెక్ట్ सर ने చేశారు. शूट किया था। ఓ సూపర్. हाँ, तो उसमें एक पैसेज था ऐसा, ये రా కొండపల్లి కోడు కుల్లారా మిలోడైన బయటకు వస్తారా ఈ साली गानी కోసం, तो वो मतलब हीरो सर के, నాగార్జున సార్. हाँ, उनकी वजह से पूरा गांव मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है, हाँ, तो ऐसे डायलॉग थे, तो हम लोग बैठ करते हैं पूरा, और पूरा मीनिंग के साथ बात करते हैं। तो दूसरी बात यह है, हाँ, ये होना चाहिए कि लोकल आर्टिस्ट को, पर लोकल आर्टिस्ट ऐसा अभी बचा नहीं है। अभी हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री ना एक इंडस्ट्री हो गई है, जहां जितने अच्छे एक्टर है उनको मौका मिलता है, बराबर। तो और लैंग्वेज, एक्टिंग का लैंग्वेज ही अलग है। वर्ल्ड में सब एक्टर की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज या एक ही होता है। हाँ, थोड़ा सा कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा वो, और वो फिर ऑब्जर्वेशन करके आ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, और स्पेशली आर्ट फील्ड में, जो भी आर्ट फील्ड होता है ना, उसमें मुझे लगता है सबको रिसीव करना चाहिए, अगर अच्छा है तो, मुझे लगता है ऐसा। సార్ కోట శ్రీనివాసరావు గారితో వర్క్ చేశారు కదా, Hmm. సో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఆయన ఎక్కువగా ఆయన ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమైనా సజెషన్స్ కానీ, లేకపోతే సో లాంగ్వేజెస్ మీద, ఇలా యాక్టర్స్ మీద మాట్లాడటం, సో ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది కోట గారితో? सर, मैं पहले तो कोटा श्रीनिवास गारू को सलाम करता हूँ, ఆ, नमन करता हूँ। बहुत सीनियर एक्टर है, और मैंने उनके साथ बहुत फिल्में की, तमिल में भी की, कन्नड़ में भी की, क्या? हिंदी में भी की। हिंदी में तो सरकार में भी थे, सरकार राज में भी थे, और दूसरी फिल्मों में भी थे, और तमिल में भी साथ में काम किया, तेलुगु में भी साथ में काम किया। और उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि रवि, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हैदराबाद में हो और कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ये मेरा नंबर है, ये मेरा घर है। मुझे घर में लेके गए थे, ఓ, ये मेरा नंबर, ये मेरा घर, कुछ भी प्रॉब्लम हो याद करना मुझे, मैं हूं यहाँ पे। तो इतना, वो शुरू के दिन थे ना एकदम, 95, 96, 2005, तो उस वक्त इतना, मतलब ऐसा कोई एक एक्टर, और इतना सीनियर एक्टर, और मैं उनके घर में गया था, वो उनके पूरे एक कमरे में पूरे ट्रॉफीज हैं, मतलब वो तो 700-800 फिल्म कर चुके हैं, कोटा श्रीनिवास गारू, जीवा गारू, मतलब ये सीनियर सारे एक्टर, नरेश गारू, सब इनके साथ जब काम करता हूं तो ऐसा लगता है कि यार इतने प्यारे लोग कैसे हैं, ये इतना इतना प्यार कैसे करते हैं। और मुझे जीवा गारू के साथ भी एक ऐसे ही हुआ था, एक किसी कहीं सेट पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया कुछ चीजों के कारण, तमिल में, तो हम दोनों थे। కోట గారు. हाँ, नहीं, आपने जीवा गारू थे, जीवा गारू। हाँ, कोटा श्रीनिवास तो उन्होंने भी एक बार एक सेट पे झगड़ा किया था मेरी वजह से। वो नाम नहीं लूंगा किसी का, वो अच्छा नहीं है, पर एक सेट पे ऐसा ही हुआ था, कुछ इश्यू हो गया, तो मेरी साइड लेके वो मैनेजर को बहुत सारा उन्होंने ये किया था कि ऐसे कैसे कर सकता है तू, हाँ। तो ये जीवा गारू भी सेम। तो एक एक्टर होता है, और इतने प्यारे लोग हैं ना, इतना और इतना प्यार मिला, तो ऐसा मन मिस करता हूं मैं उनको। अभी कोटा श्रीनिवास गारू बहुत एज हो गई है शायद, वो पर मिस करता हूं उनको, जीवा गारू को भी मिस करता हूं। कभी कभी फोन पे बात करते हैं हम लोग पर। సూపర్. సో నా పేరు సూర్య, నా ఇల్లు ఇండియా, సో స్టార్టింగ్ ఫైట్ విత్ అల్లు అల్లు అర్జున్ సార్. అర్జున్ సార్, సో కోపం వస్తే కొట్టేస్తావా? సో మీ డైలాగ్ గుర్తు, కోపం వస్తే కొట్టేస్తావా? So, కొట్టేస్తావా? నాకు కోపం వస్తే మంత్రాలు రావు, मिनिस्टर బూతులే मिनिस्टर వస్తాయి. कोड को ऐसा हाँ। मिनिस्टर का बच्चा है तो बोलता है, तो गुस्सा है तो मिनिस्टर को भी मारूंगा। तो पर वो भी उनके साथ पैशन बहुत है, అల్లు అర్జున్ సార్. डिटेलिंग बहुत है, और फिजिकल्स ये वो सब कि क्या चाहिए, कैसे परफेक्शन में बहुत ध्यान देते हैं। तो और यही इसीलिए अभी अगर देखा जाए तो तेलुगु इंडस्ट्री मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे इंडस्ट्री है आज की तारीख में। उसका रीजन यही है कि इतना डिटेलिंग में जाते हैं,
अभी भी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ बालकृष्ण सर के साथ, बॉबी डायरेक्टर है उसका Present टाइटल, work हाँ, जरूर। अभी शूटिंग चल रहा है, उसी शूटिंग के सिलसिले में आया हूँ। तो वहां पे भी जो डिटेलिंग हो रहा है, मतलब वो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चला गया है तेलुगु इंडस्ट्री, वो छोटा नहीं रहा है अभी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत। और वो तो बाहुबली ने प्रूव कर दिया। या अभी जितने भी फिल्में आई है तेलुगु से ही, पैन इंडिया तेलुगु से ही निकलना शुरू हो गया। तो पहले तो रीजनल बोलते थे, छोटी इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री है, पर अब वो बचा नहीं है। तो इसीलिए अगेन वो लास्ट वाला, इसके पहले वाला सवाल के साथ जोड़ता हूं मैं इसको। तो इसीलिए बड़ा बनना है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बराबर। अगर आप अपने को बड़ा बनना है तो सबको एक्सेप्ट करो, अपने साथ जोड़ो और आगे चलो। ఓకే సార్, కమింగ్ టు పాలిటిక్స్, Hmm. మీకు పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్టా? हाँ, बहुत सारा। क्योंकि उसके बगैर आप जी नहीं सकते ना, हाँ। और हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स के बगैर आप जी नहीं सकते। और पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिक्स किसी और का काम है। आप एटलीस्ट आप अगर सही वोटर हो, सोचने वाले वोटर हो, तो सही गवर्नमेंट चुन सकते हैं आप। तो इसलिए हर किसी को सोचना चाहिए, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सोच लो और सही आदमी को वोट दे दो। ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఏపీ పాలిటిక్స్, యు నో ఏపీ పాలిటిక్స్. సో పవన్ కళ్యాణ్ సార్, मालूम है। యాక్టర్ టు పొలిటీషియన్, సో డిప్యూటీ సీఎం, यस, యు నో డిప్యూటీ సీఎం సార్? या आई नो। महाराष्ट्र में दो है, Oh. 1 CM 2 डेप्यूटी CM। సో यहाँ ఇక్కడ पे, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ జీ. Hmm. సో లేటెస్ట్ ఇష్యూ మీకు తెలుసు, అండ్ తిరుమల, बिल्कुल। సో లడ్డు కానీ అండ్ సనాతన ధర్మం గురించి కానీ, అక్కడ తమిళనాడులో ఉన్న కొంతమందికి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, లేదా వాట్ ఎవర్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఇలా ఇష్యూ అవుతుంది. సో సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ సనాతన ధర్మం అండ్ తిరుపతి లడ్డు ఇష్యూస్? मैं पहले पवन कल्याण सर को पहले प्रणाम करता हूं, और प्रणाम इसलिए भी करता हूं, आप ग्रेट एक्टर हो, आपके साथ काम करने का मौका नहीं मिला फिर कभी। पर अभी जो उन्होंने स्टैंड लिया है, ये सनातन धर्म रक्षा, ये बनाने का भी, तो सर सल्यूट। रही दूसरी बात, एज एन एक्टर वो तो प्रूव हो चुका है, अब एज अ पॉलिटिशियन वो भी प्रूव हो गया, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट है उनका। जितने लोग खड़े किए उतने लोग चुन के आ गए। और दूसरी बात, मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा मालूम है, वो जब डिप्टी सीएम बने और अपने बड़े भैया को मिलने गए, चिरंजीवी सर को, पहले उन्होंने जूता उतारा, बराबर, पहले उन्होंने जूता उतारा, फिर जाके पूरा धरती पर साष्टांग नमस्कार किया अपने बड़े भैया को। यह है सनातन धर्म, यह है सनातन धर्म की शिक्षा, यह है सनातन धर्म की दीक्षा, बड़ों का रिस्पेक्ट, एक कल्चर। वही, मैं नाम नहीं लूंगा, अपोजिट साइड में देखो, दूसरे धर्मों में अपने बड़े भैया का सर कलम करके अपने बाप को जेल में डाला था, थाली में सजा के बड़े भैया का सर बाप को भेंट किया था, दाराशी को, बराबर। तो जरूरत आज की तारीख में जरूरत है सत्य सनातन धर्म की, क्योंकि वहीं से, और ये अनादिकाल से आया हुआ है ना। आज भले जो भी चल रहा है, पर वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और इसीलिए पवन कल्याण सर को सलाम, और दिल से सलाम है। और मैं हिंदू हूं, और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, और मुझे फक्र है, मुझे आई फील प्राउड, क्योंकि हमारा कल्चर अच्छा है। हम जीवो जीवस्य जीवनम, बराबर, ये हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति है। आज तक सनातन धर्म ने किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया है कभी, आज तक इतिहास देखो, बराबर। तलवार के जोर पर सलवार नहीं पहना है हमने किसी को। जो भी किया है, जो भी हुआ है, सामने वाले को अच्छा लगा, तब वो सनातन धर्म में आया है। तो ये सनातन धर्म है, और हम प्यार करना जानते हैं, हम एक दूसरे को बांटना जानते हैं, इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और मोदी साहब ने वो सही कहा था पवन कल्याण सर के बारे में, जब मोदी सर आए थे यहाँ पे वो फंक्शन में, तो उन्होंने कहा था ये पवन नहीं है, आंधी है। यस सर, आप अपनों के लिए पवन है, दुश्मनों के लिए आंधी है। थैंक यू। సూపర్ సూపర్, ఎక్స్ట్రాऑर्डिनरी वर्ड सर. नहीं, हाँ, ऐसा होना भी चाहिए,
सी बाकी लोग शर्माते हैं क्या? बाकी धर्म के लोग, धर्म मतलब उनकी जो भी है, वो तो शर्माते नहीं, हम क्यों शर्माएं? तो हमें भी फक्र होना चाहिए ना कि मैं भी सनातनी हूं, ये माला पहनता हूं, ऐसे ये है मेरे गले में, हाँ ये आपके गले में है, रुद्राक्ष है, तो उसमें क्या, ये हमारी पूजा पद्धति पर हम किसी को हावी नहीं होते। और इसलिए पवन कल्याण सर, सलाम है आपको, आप अपनों के लिए पवन है पर दुश्मनों के लिए आंधी है। और ये मोदी साहब ने आपको जो टैगलाइन दिया ना, वो करेक्ट है। కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మచ్ రవి సార్. సార్ ఒకవేళ మీరు ఈ యాక్టర్ కాకపోతే ఏమై ఉండేవాళ్ళు సార్ మామూలుగా? अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं किसान होता, राइट। వావ్. हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरी ये दोनों ही जगह है, और मैं प्यार करता हूँ, और फार्मिंग के बारे में भी प्यार करता हूँ, और एक्टिंग के फील्ड को भी प्यार करता हूँ मैं। मतलब काम के लिए मुझे ये काम नहीं लगता है, फार्मिंग भी मुझे काम नहीं लगता है, और इसीलिए मेरे पूना में मेरा फार्म है, और मैं अभी भी जब मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही शूटिंग पैकअप हो जाता है, मैं मुंबई जाता हूँ, मुंबई जाने के बाद एक आध दूसरे दिन के बाद तुरंत फार्म पे भाग जाता हूँ। अगर 4-5 दिन है तो 4-5 दिन, और वहां जाके मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। बहुत आगे करना है, बहुत सारे, मतलब मैंने सैंडलवुड, मेरे फार्म में सैंडलवुड के प्लांट्स है, रक्त चंदना, एरा चंदना के प्लांट्स है, मैंगो प्लांट्स है, वो भी यहाँ का बनगनपल्ली भी है, कर्नाटक का मलगोवा भी है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स की कई वैरायटी है मेरे फार्म में, और बहुत बढ़िया फार्म है। और वो भी मैंने अनडेवलप लैंड लेके उसको डेवलप किया है, पिछले 2009 से मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ। तो एक वो भी ये यहाँ की जगह है, वो प्यार है मेरा, फार्मिंग और एक्टिंग। సార్ ఇందాడ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీరు అన్నారు ఆచార్యలో చిరంజీవి గారితో యాక్ట్ చేశాను ఒక 23 days, తర్వాత వేరే వేరే రీజన్స్ వల్ల అవి పోయినాయి, అయిపోయిందని. సో అలాగా ఇంకేదైనా మూవీలో యాక్ట్ చేసి తర్వాత అది ఎడిటింగ్ లో తీసేసిన టైం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఒక సినిమా స్టోరీని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ క్యారెక్టర్ మీదే అని చెప్పి తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఉన్నాయా సార్? తెలుగు సినిమా ఉన్నాయా సార్? मैं समझा नहीं इसका मीनिंग। లైక్ ఇప్పుడు ఆచార్య లాగా వేరే సినిమాలో మిమ్మల్ని ఎడిటింగ్ లో తీసేసినవి కానీ, లేకపోతే మీరు మిస్ చేసుకున్న మూవీస్ ఇన్ తెలుగు ఉన్నాయి సార్? नहीं, मैं उसको गलत भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये होता है, क्योंकि बेटरमेंट के लिए ना, कभी कभी क्या होता है, उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि ये पोर्शन की जगह दूसरा कुछ डालते हैं, तो वो हुआ होगा। और वो डिसाइड करने वाले जो है ना, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो लोग है, या हीरो है, ये जो भी है, मतलब जो एक टीम होती है ना कि हाँ भाई, हाँ नहीं यार ये थोड़ा सा ऑफ स्टोरी जा रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है उसमें। पर हाँ, करने का अगर वो रहता फिल्म में, तो शायद लोगों को एक अलग रवि काले एक्टर दिखता कि ये इमोशनल भी कर रहा है, ये क्योंकि अभी तक रवि काले को विलन देखा है लोगों ने, कि रवि काले इमोशनल भी करता है, रवि काले कॉमेडी भी कर सकता है, रवि काले बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग वाला कैरेक्टर भी कर सकता है। तो ये ऑडियंस के सामने चला जाता, पर अभी जाएगा, अभी कर रहा हूं ना, जो 2-3 प्रोजेक्ट है उसमें पॉजिटिव है सब कुछ, और अच्छे कैरेक्टर्स है। क्योंकि अभी विलन करते करते भी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि यार बहुत हो गया अभी ये थोड़ा सा, ये एक ही डिश खाने से जैसे इरिटेट होता है ना आदमी, तो अभी बाकी डिश भी चेक करना चाहिए, इमोशनल है, ये है, वो है, और वो शुरू हो गया अभी। సార్ ఎప్పుడైనా షూటింగ్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ ఎలాంటి ఫుడ్, తెలుగు స్టేట్స్ వస్తే ఎలాంటి ఫుడ్ ని మీరు ఇష్టపడతారు సార్? आई लव साउथ इंडियन फूड, क्योंकि महाराष्ट्र है ना, एक्चुअली क्या है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, तो महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, ये बहुत सिमिलर कल्चर का है, बराबर। आप जैसे बाजरा, ज्वारी, बाजरी आप खाते हैं, गांव खेड़े में खाते हैं ना, ज्वार का रोटी, बाजरे का रोटी, वैसे हम भी खाते हैं गांव में, ज्वार का रोटी, बाजरे का रोटी। पर यहाँ पे आके, और जैसे सांबार जो है यहाँ का, सांबार, हाँ, वो सांबार तो सबसे फेमस है ना, तो वो भी बोलते छत्रपति संभाजी महाराज जो थे हमारे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे, उनको जो पसंद था उसका नाम सांबार पड़ गया, संभाजी को पसंद है वो सांबार। हाँ, तो ऐसा पहले से ही बहुत मिक्स कल्चर है हम लोगों का, तो ऐसे डिफरेंट नहीं है कुछ भी। और रही बात फूड की, तो मैं अगर महीने में एक बार 2-4-8 दिन आंध्रा या कर्नाटक में नहीं आऊं, तो मुझे मुंबई में ऐसे अनईजी फील होना शुरू हो गया, तो मैं घर में बोल देता हूँ सांबार बनाते हैं आज सांबार राइस खाते हैं। आई लव फूड यहाँ का,
कभी कभी क्या ये होता है ना कि आपको अभी 20 इयर्स हो गया ना, तो आई एम यूज टू ये सारी चीजें ना यहाँ की, मतलब पूरी साउथ इंडस्ट्री की, इससे मैं बहुत यूज टू हो गया हूँ। तो वो मिस करता हूँ, अगर 10-15 दिन मैं नहीं आऊं ना साउथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ होना चाहिए अभी। सर हैदराबादी बिरयानी लॉट्स ऑफ टाइम, वाओ, हाँ लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब वो तो एक ओक्का मगाड़ू करके फिल्म किया था बालाकृष्णा सर के साथ ही, तो उसमें वो रजा करके उसका ओनर जो है, एक्टर भी था ना वो, रजा करके लड़का था, तो वो तो उस वक्त तो इतना बिरयानी खिलाया और इतना सब कुछ खिलाया, रोज सेट पे लेके आता था ऐसा, वो ऑर्डर करके, और मैं बोलता था यार तू मार रहा है, तू रॉन्ग प्लानिंग कर रहा है, हम लोग को खत्म करने का प्लान कर रहा है, खिला खिला के मोटे बना के रिटायर करने का प्लान। मैं बोला होगा नहीं, हम ऐसे ही दिखेंगे। सर डाइट प्लान ఎలా ఉంటుంది సార్ మీది? मेरा डाइट ये है, मैं 2 मील्स अ डे करता हूँ, तो वो एक महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, और 2 मील्स मतलब एक बार लंच किया तो सीधा डिनर, बीच में कुछ नहीं लेना है, और सुबह एक ब्लैक टी या लेमन टी, और 4 बजे शूटिंग में है तो 4 बजे 4 बजे एक कॉफी, बस। तो ये है, और कभी अगर मौका लगा तो फ्रूट्स है, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लेता हूँ, और बस यही है। तो इसी के लिए सब लोग बोलते हैं लास्ट 20 इयर्स आपको देख रहे हैं ऐसे ही दिख रहे हैं। और दूसरा सनातन धर्म और ये इसके वापस कनेक्टेड है, मैं योगा करता हूँ रोज, 2 आवर्स मिनिमम चाहिए मुझे, योगा प्राणायाम 2 घंटा रोज करता हूँ, और अर्ली मॉर्निंग उठ के करता हूँ, तो इसीलिए फिट हूँ। तो यही सनातन की शिक्षा है ना हमारी, सत्य सनातन धर्म है। और अभी वर्ल्ड में भी इतना मोदी साहब ने हमारा योगा वगैरह इतना प्रमोट हो गया, पूरा वर्ल्ड अब ये करने लगा है। और अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो योगा प्राणायाम ध्यान ये बहुत जरूरी है अभी। सुपर। और आपका स्किन का टेक्सचर बदलता है, आपका फेस का ग्लो बदलता है, तो यही योगा शिक्षा है। और ये बाबा रामदेव ने भी, थैंक्स बाबा रामदेव भी, मोदी जी भी पूरे वर्ल्ड को बता दिया। क्योंकि तो पहले क्या था मालूम है, योगा मतलब नहीं वो टीचर ऐसा चाहिए, वो नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होता है, सांस लेना है सांस छोड़ना है यार, बस। ब्रीद इन ब्रीद आउट, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सब 2 घंटा चाहिए मुझे मिनिमम, और रोज करता हूँ विदाउट फेल। సూపర్, बिल्कुल। रवि काले सर फर्स्ट रेम्युनरेशन इन तेलुगु? फर्स्ट रेम्युनरेशन मतलब मैं अमाउंट में नहीं बोलना चाहिए, पर बहुत अच्छा पैसा मिला था। अच्छा पैसा। सर ఏం చేశారు సార్ దాంతో? एक्चुअली क्या हुआ था, वो सरकार के पहले किया ना ये मास, तो तब तक तो मैं स्ट्रगलर एक्टर था, बराबर। तो मुझे राघवेंद्र लॉरेंस मुझे पृथ्वी थिएटर में मिले थे मुंबई में, वो आए थे हीरोइन कास्ट करने के लिए, और उसके पहले मैंने अब तक 56 में एक सीन किया था, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, तो वो वहां पे बैठे थे पृथ्वी थिएटर कैफे में, और मुझे देखा तो मुझे पहचान लिया उन्होंने, बोले यार, तो बुला लिया, मैं गया उनके पास, बोले आपने अब तक 56 में वो कॉर्पोरेटर का कैरेक्टर किया है? बोला हाँ सर। तो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, वो प्रसाद करके उनके साथ असिस्टेंट थे उनके, तो वो हिंदी में बोलते थे। राघवेंद्र लॉरेंस सर को तो हिंदी, तमिल, तेलुगु बस वही बोलते हैं। तो वो इंटरमीडिएटर जैसे मीडिएटर जैसे बात कर रहे थे, तो बोले ऐसे ऐसे, हाँ चलो। तो फिर नेक्स्ट डे मेरा नंबर दे दिया, नेक्स्ट डे फोन आया, तो बोले रवि जी ये 10 दिन चाहिए आपके, और ये इतनी अमाउंट है, तो कुछ, मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू, गुड अमाउंट। सर एनटीआर सर, जूनियर एनटीआर सर है ना, ఇస్ అ మాస్ హీరో ఇన్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, బట్ ఆయన మాట్లాడే లాంగ్వేజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు లారెన్స్ గారికి తెలుగు తమిళ్ బాగా మాడతారు కానీ హిందీ కొంచెం, బట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ, చైనీస్, జపనీస్, సో చాలా లాంగ్వేజెస్ మాడతారు కదా ఆయన. విన్నారా ఎప్పుడైనా, చూసారా? मैं उनके साथ अशोका में काम भी किया था ना हमने, उसमें और 1-2 बार मैं मिला भी था उनको, दूसरे అశోక్, మీరు అశోక్ తో వచ్చేసారు. అశోక్ లో ఆయన కొంచెం బబ్లీగా కొంచెం, బట్ ఇప్పుడు हाँ नहीं वो तो ट्रांसफॉर्मेशन सडनली क्या होता है, कभी कभी एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं मिला कुछ, या कुछ
मेंटल समझो कभी हो जाता है क्या, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो मिस हो जाता है, पर ट्राई करते हैं, करना है वो, मेंटेन करना है अपने आप को, क्योंकि सी एक्टर ऑलवेज वो फ्रेम पे दिखता है ना, तो एक पब्लिक फिगर है, तो प्लेजेंट होना चाहिए, देखने के लिए अच्छा लगना चाहिए लोगों को, मतलब ऐसे पेट निकला है या मैं ऐसे स्थूल हो गया हूँ, वो कॉमेडी में चल जाता है, पर हम लोग तो थोड़ा सा फिट वाले लोग हैं ना। तो रही बात एनटीआर सर की, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, और ये बचपन में एक्चुअली लैंग्वेज ना बचपन में सीखना चाहिए, वो शायद उन्होंने बचपन में सीख लिया, या तो शुरू की इंडस्ट्री जो थी ना अपनी, ये सारी इंडस्ट्री तमिलनाडु में थी, तो घर में तेलुगु या कोई कन्नड़ मित्र दोस्त मिल गया तो वो भी सीख लिया, और बाहर जाते तो तमिल, तो ऐसे पुराने जो जितने भी लोग हैं ना इंडस्ट्री वाले, वो तमिल भी जानते, कन्नड़ भी जानते, तेलुगु भी जानते, क्योंकि पूरे सब टीम एक अलग अलग लैंग्वेज की थी ना, तो इसीलिए वो मल्टी लैंग्वेज, और मल्टी लैंग्वेज आना चाहिए एक्चुअली, बहुत ये एसेट है, बहुत बड़ी एसेट है, क्योंकि हम लोग भी बोलते हैं ना कि यार आप डायलॉग बाहर कैसे करें, अभी आपको बोल के दिखाया ना मैंने, तो मतलब उतने इतने साल हो गए, 20 साल हो गए मैंने बोला हुआ डायलॉग, आज भी याद है, और कल भी डायलॉग जो बोलेंगे वो बाहर करते हैं हम लोग, और प्रॉपर मीनिंग के साथ बाहर करते हैं, मतलब ओके नहीं अकेले को कोटा डान की मारने को, इंत इतने मंदिनी लोग पंपाइडे भेजे सत्याने, तो ये पूरा मीनिंग के साथ करते हैं, तो उसका क्या है ना, इंपैक्ट करेक्ट आ जाता है, बराबर। तो लैंग्वेज ऑलवेज, आई लव लैंग्वेजेस, और इसलिए मैं काम भी करता हूं ना तो बहुत प्यार से करता हूं, तो डबिंग भी करता हूं, कन्नड़ में डबिंग करता हूं, तेलुगु में, तमिल में डबिंग करता हूं, सब हर लैंग्वेज का डबिंग, गुजराती फिल्म किया उसका भी डबिंग मैं किया, तो उसको क्योंकि वो मजा आता है काम करने में, और ये पैशन है मेरा, मतलब ये एक्टर ऐसे कोई पुश करके आया चलो एक्टर कर, नहीं ऐसा नहीं है, करना था, जैसे पेड़, मतलब पेड़ को मैं बच्चा समझता हूँ, एक एक पेड़ मेरे फार्म में, उसको एक एक बच्चा समझता हूँ मैं, तो जैसे ये फिल्म भी है ना, फिल्म इंडस्ट्री भी मेरे लिए बहुत यहाँ की बात है, मतलब वो बाकी चीजें सब दूसरी है, पर एक्टिंग मतलब ऐसा सामने वाले को ऐसे रियल करके दिखाना है, रियल एक्टिंग क्या होती है, और वो यहां से आता है पूरा ऐसे एकदम, जैसे समाधि बोलते हैं ना, एक समाधि में संत जब बैठ जाते हैं तो वो कैसे होता है, वैसे हम लोग जब परफॉर्म करते हैं इट्स लाइक ए समाधि, दूसरी चीज नहीं नजर आती कुछ, तो वो एक मतलब ध्यानस्थ होना पड़ता है, तब जाके ये रियल एक्टिंग आ जाती है। ओके सर, अपकमिंग मूवीज अभी तो 3-4 है तेलुगु, हाँ तेलुगु में, 3-4 तेलुगु में है, बालकृष्णा सर, हाँ उनके साथ एक जॉन करके एक डायरेक्टर है, वो नई टीम है पूरी, पर जॉन करके डायरेक्टर है, और एक दो प्रोजेक्ट है, अभी आया था हरो मारा आया था बीच में, एक महीना पहले हरो मारा आया था सुधीर बाबू के साथ, ऑलरेडी रिलीज सर, हाँ ऑलरेडी रिलीज, और 2-3 अभी रिलीज पे है, मतलब रेडी हो जाएगी, शूटिंग चालू है, हाँ कई बातें चल रही है सर। ఓజీ పవన్ సార్ తో చేయట్లేదా ఓజీలో? पवन सर के साथ नहीं हुआ काम अभी तक, अभी तक काम नहीं किया उनके साथ, हाँ नहीं तो दोस्त हो जाते हैं मैं हिंदू మీరు జాయిన్ అవుతారా, ఆయన పార్టీలో జాయిన్ అవుతారా ఒకవేళ ఆయన వెల్కమ్ చేస్తే? नहीं अब क्या होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ अगर पार्टी ज्वाइन करना है तो, पर हाँ मेरा सलाम है और सपोर्ट रहेगा हमेशा, जो भी मतलब जो भी हिंदुओं के बारे में जो भी पॉजिटिव रहेगा, जो भी बात करेगा ना, मैं उनके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है क्योंकि मैं आई एम डाई हार्ट हिंदू, थैंक यू, मैड हिंदू, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి సార్. సో చాలా విషయాలు మీరు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు, అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ సార్, అండ్ తెలుగులో మీరు ఇంకా 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 మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అనమాట. థ్యాంక్ యూ చందు సార్, థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది ఈరోజు మన సో వెస్టైల్ యాక్టర్స్ అండ్ విలన్, సో కమెడీ, వాట్ ఎవర్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా ఆయన చేయగలరు, అండ్ చాలా విషయాలు అయితే చెప్పారు కదా, అండ్ నాకైతే చాలా అర్థమైంది, మరి మీకు ఎంత అర్థమైందో అండ్ కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మీ లుక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.